حشاشین کون تھے؟ حسن بن صبا کی جنت حقیقی تھی یا فرضی؟ داستان حسن بن صبا کی جنت کے بارے میں دنیا کو کیسے علم ہوا؟ تاریخ میں خودکش حملوں کا آغاز کس نے کیا؟ حسن بن صبا کا قلعۃ الموت کہاں ہے؟ کیا حسن بن صبا واقعی اپنے فدائین کو حشیش پلاتا تھا؟ حسن بن صبا کو ورثے سے کیوں نکالا گیا؟ حسن بن صبا کا فرقہ کیا تھا؟ حسن بن صبا سے قلعۃ الموت کس نے چھینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں زمین پر بنائی جانے والی دو جنتوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک جنت خدائی کے دعوے دار شداد نے بنائی، اسے باغ الارم کہا جاتا تھا۔ دوسری جنت حسن بن صبا کی تھی جو اس نے ایران میں واقع ایک قلعہ الموت میں بنائی تھی۔ اس جنت کے مکینوں کو فدائی یا حشاشی کہا جاتا تھا۔ یہ اس دور کے خودکش حملہ آور تھے جن کے خوف سے اس دور کے حکمران، جرنیل اور علماء تھر تھر کانپتے تھے۔ قلعۃ الموت شمالی ایران کے پہاڑی سلسلے کو البرز میں واقع ہے۔ اگر آج تہران سے تبریز بذریعہ سفر کیا جائے تو تبریز سے چند میل پیچھے ایک سڑک بائیں جانب مڑتی ہے۔ اس موڑ پر قلعۃ الموت کا ایک بورڈ نصب ہے، وہی قلعہ جو حسن بن صبا کا مسکن تھا، وہی حسن جسے مشرق میں فدائین تحریک کا بانی کہا جاتا ہے اور مغرب میں اسے حشاشین تحریک کا رہبر تصور کیا جاتا ہے۔ حسن بن صبا کون تھا؟ اگر ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے تاریخ کے اوراق الٹیں تو ہمیں انتہائی دلچسپ روایات جاننے کو ملتی ہے جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ حسن بن صبا کا اصل نام حسن بن علی بن احمد بن جعفر بن حسن بن صبا خبیری تھا، جو 1150 کے آس پاس ایران کے شہر کم میں ایک عرب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس گھرانے کا تعلق اسماعیلی نظاری فرقے سے تھا۔ حسن بن صبا کے آباء و اجداد کوفے سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ حسن کے والد کا نام علی تھا جو کم سے ری منتقل ہو گئے۔ حسن نے اپنی ابتدائی تعلیم رے میں حاصل کی۔ 9 عمری میں ہی وہ مذہبی رہنما بننا چاہتا تھا۔ 17 سال کی عمر تک اس نے دینیات، فلکیات، جیومیٹری، ریاضی اور منطقی علوم حاصل کیے۔ پھر وہ نیشا پور گیا جہاں اس نے امام موفق کے مدرسے میں اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر کچھ عرصہ استحان میں رہنے کے بعد رے واپس لوٹ آیا جہاں اس کی ملاقات اسماعیلی فرقے کے الکبیر نامی عالم سے ہوئی جس نے اسے تبلیغ کے لیے 1078 میں مصر بھجوا دیا۔ مصر میں اس وقت فاطمیوں کی حکومت تھی جو اسماعیلی تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ در پردہ ان کا تعلق باطنی فرقے سے تھا۔ قاہرہ میں فاطمیوں کے دربار میں حسن بن صبا کی بڑی قدر و منزلت ہوئی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اسے حکومت خلافت سازش کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، جس روز اسے قلعے کے زندان میں ڈالا گیا۔ عین اسی روز اس قلعے کا ایک مضبوط برج بغیر کسی معقول وجہ کے یکدم زمین بوس ہو گیا۔ قاہرہ میں اس واقعہ کے برج کا گرنا حسن بن صبا کی کرامت سمجھا گیا۔ قاہرہ میں حسن بن صبا کے چاہنے والوں نے اس واقعہ کو اپنی رہنما کی بے گناہی سے تعبیر کیا۔ اس نے پہلے کے لوگوں میں اشتعال پھیلتا قلعہ دار میں حسن بن صبا کو ایک بحری جہاز پر سوار کرایا اور افریقہ کی جانب روانہ کر دیا۔ جہاز سے اتر کر حسن پہلے حلب پہنچا اور پھر بغداد سے ہوتا ہوا اصفہان پہنچا اور ایران کے علاقے دی ایمان پر توجہ مرکوز کر دی۔ وہ 9 سال تک تبلیغ کرتا رہا۔ اس دوران اس کے حامیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اس کی نظر الموت کے قلعے پر تھی جو جنگی نقطہ نظر سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ الموت مقامی زبان کے الفاظ اعلیٰ اور ابوس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے عقاب کا سکھایا ہوا۔ الموت ایک ایسے پہاڑ پر واقع ہے جس کی شکل گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اونٹ کی مانند ہے۔ قلعہ جس چٹان پر تعمیر کیا گیا تھا اس کے چاروں طرف ڈھلوانیں تھیں۔ قلعے تک پہنچنے کا صرف ایک تنگ راستہ تھا جس کا بڑی آسانی سے دفاع کیا جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اس قلعے کو اس دور میں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ حسن بن صبا نے قلعۃ الموت کے آس پاس کے علاقوں میں اپنے لوگ بھیجے۔
जिन्होंने दावत तबलीग के जरिए लोगों को अपना गर्विदा बना लिया। सन 1090 में वो वक्त आ गया जिसका हसन बिन सबा को बरसों से इंतजार था। अल मौत के किलादार हुसैन मैदी ने खुद अपना कलाम हसन बिन सबा के हवाले कर दिया। तारीखी कहानियों के मुताबिक उसी किला अल मौत में हसन बिन सबा ने अपनी फदाइयों के लिए एक जन्नत बनाई, जिसे पाने के लिए वो बिला खौफ खतर मौत को गले में लगा लेते हैं। कहा जाता है हसन बिन सबा की जन्नत एक वसी और खूबसूरत बाग पर मुश्तमिल थी। इस जन्नत में खूबसूरत 2 चीज़ें दूध, शहद और शराब समेत हर वक्त सहूलत दस्तयाब थी, जिसका वादा किया गया है। हसन बिन सबा 12 से 20 साल तक के लड़के को फदाई बनाने के लिए मुंतखब करता, फिर कुछ रोज तक उसकी ब्रेन वॉशिंग करता। एक रोज उसे भंग दी जाती और मदहोशी के आलम में खुफिया रास्तों के जरिए उसे जन्नत में मुंतकिल कर दिया जाता। हूरों की कुर्बत में चंद रोज गुजार कर जब वो वापस किले में आता तो उस जन्नत को दोबारा पाने के लिए शेख के इल्म पर जान देने को भी तैयार हो जाता। सर जोकियों ने 1092 में जब किला अल मौत का मुहासरा किया तो हसन बिन सबा ने अपने फदाइयों से पूछा कि तुम में से कौन है जो सल्जूक बादशाह के वजीर आजम निजामुल मुल्क तोशी को कत्ल कर सकता है। अबू ताहरा ईरानी नामी एक नौजवान ने खुद को पेश किया। तोशी इन दिनों बेईमान के इलाके में था। अबू ताहर एक फकीर के रूप में उसके करीब पहुंचा और जहर में बिछा खंजर उसे घोंप दिया। तोशी को कत्ल करने के बाद वो खुद भी मुहाफिजों के हाथों मारा गया। ये हसन बिन सबा का पहला खुद का हमला था। हसन बिन सबा के फदाइन से मुतल्लिक एक और किस्सा भी सुनने में आता है। कहा जाता है कि एक दिन किसी मुल्क का सफी अल मुदा है, उसने अपने हुक्मरान की कील कांटे से लेस फौजों की हैबत के बारे में डंके मारना शुरू कर दी। हसन बिन सबा ने कहा, ठहरो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असल सिपाही क्या होता है। उसी वक्त सफीर को किले की छत पर ले गया और वहाँ तैनात 2 मुहाफिजों में से एक से कहा कि छत से कूद जाओ और दूसरे को हुक्म दिया कि अपना खंजर निकाल कर अपने दिल में प्रवेश कर लो। कहा जाता है कि जब एक मुहाफिज बिला चूं चिराग किले की बुलंद फसील से कूद गया और दूसरे ने खंजर अपने सीने में घोंप दिया तो सफीर पर वही हैबत तारी हो गई जो उसने अपने जबरदस्त फौज के जिक्र से हसन पर तारी करना चाहे। हसन बिन सबा का सबसे बड़ा हथियार यही फादईन थे जो मुखालिफ हुक्मरानों के चलाक वजीरों, जर्नैलों और मुख्तलिफ उलमा को कत्ल करते हैं। न सिर्फ ईरान और मशरक़ वस्ता बल्कि यूरोप और सलीबी इलाकों में भी अपने मुखालिफिन तक जा पहुँचते हैं। कहा जाता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख्वाबगाह तक भी एक फदाई पहुंच गया था। सुल्तान उस वक्त नींद में थे। फदाई ने इन्हें कत्ल तो ना किया लेकिन एक तनबीही खत उनके सरहाने रख आया। हसन बिन सबा के पास ना तो कोई बड़ी फौज थी और ना लागत ना ही वसाइल के जिनके बल बोते पर वो सल्जूकों और दूसरे हुक्मरानों को जेर कर सकता। लिहाजा उसने बराह रास्त जंग की बजाय खुद का हमलों की मनसूबाबंदी की और अपने सियासी और मजहबी मुखालिफिन को फदाइयों के जरिए कत्ल कराया। इस वक्त ईरान, तुर्की और मशरक़ वस्ता के तमाम हुक्मरान इन फदाइयों के खौफ से थर थर कांपते थे। हत्ता के कई सलीबी रहनुमा भी इन फदाइयों की भीड़ चढ़े। ये थी हसन बिन सबा की जन्नत। लेकिन इस जन्नत की हकीकत हमें तारीख में इस तरीके से कहीं नहीं मिलती। इस कहानी को मशहूर करने में सबसे नुमाया किरदार मार्को पोलो ने अदा किया। वो तालवी सियाह जिनका सफरनामा दुनिया की मशहूर तरीन किताबों में शुमार किया जाता है। अपने सफरनामे में मार्को पोलो ने लिखा है कि शेखुल जबाल ने 2 पहाड़ों के दरमियान वाक़या वादी में एक वसी, अरीज और खुशनुमा बाग बनाया है जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। उसमें हर किस्म के फल पाए जाते हैं और तसव्वुर से बाहर हसीन महल्लात और खेमे हैं जिन पर सोने के वर्क चढ़े हैं और उनमें नफीस तस्वीर है। इस बाग में छोटी छोटी नदियां हैं जिनमें शराब, दूध, शहद और पानी बहता है और यहाँ दुनिया की हसीन तरीन 2 चीज़ें हैं जो हर तरह के साज बजाती हैं और वो हसीन
रंगीन नगमे गाती हैं और दिल लुभाने वाले रक्स करती हैं। बर्रे सगीर पाको हिंद में ये किस्सा आम हुआ। अब्दुल हलीम शर्रर के नावल फरदौस बरी के जरिए जो 1899 में शाया हुआ। इस नावल में भी हसन बिन सबा की जन्नत की तस्वीर कशी कुछ इस तरह से की गई है जिस तरह मार्को पोलो ने अपनी किताब में लिखी है। अब हकीकत कुछ यूं है कि मार्को पोलो जब 1272 में चीन जाते हुए इस इलाके से गुजरा तब हसन बिन सबा को फौत हुए तकरीबन 1.5 सदी और मंगोलों के हाथों किलातुल मौत को तबाह हुए 15 बरस गुजर चुके थे। मशहूर मगरबी मुहक्किक पीटर वली जिन्होंने 1959 से लेकर 2005 यानी 40 साल तक ईरान, शाम, हंजा और बदरखशा में इस्माइलियों और उसके किलों पर रिसर्च की, वो अपनी किताब ईगल नीस्ट में फ्रांसिस वुड की एक किताब डेड मार्को पोलो गो टू चाइना का हवाला देते हैं। इस किताब में फ्रांसिस वुड ने लिखा है, दरअसल मार्को पोलो चीन नहीं गया बल्कि इन्होंने कुस्तुनतुनिया और बहरा असवद से आगे मजीद मशरक का सफर किया ही नहीं। मार्को पोलो के ख्याली अफसानों का असल माखज उनके वालिद और चचा की रवायत हैं जिन्होंने शायद चीन का सफर किया हो। हसन दरअसल नाकाबिले फरामोश शख्सियत है। सियासत और मिलिट्री स्ट्रेटजी में इसको कमाल महारत हासिल थी। अपनी करशमाती शख्सियत की बदौलत उसने अपने पैरोकारों की गैर मशरूत हमायत और मोहब्बत हासिल की थी। सल्जूकों के मुकाबले में जिंदगी और मौत के जंग में उसने अपने पैरोकारों यानी फदाइन को मुतहर्रिक किया और उनके जरिए ये जंग जीत ली। हलाकू खान के दरबारी मलक जवीनी हसन बिन सबा और इस्माइली नजारों के कट्टर मुखालिफ थे। हलाकू खान ने जब 1256 में किलातुल मौत फतह किया तो जवीनी उनके साथ किले पहुंचा। वो अपनी किताब तरीक जहां कुशा में बड़ी तफसील से हसन बिन सबा के हालाते जिंदगी, उनके नजरियात, अल मौत की तारीख, वहां के हुक्मरानों, अमारात, तर्ज तमीर और कुतुब खानों का अहवाल बयान करते हैं। लेकिन उनकी किताब में कहीं भी किसी जन्नत या उसके आसार का जिक्र ढूंढने से भी नहीं मिलता। इस दौर के एक और मशहूर तारीखदान रशीदुद्दीन हमदानी भी 1307 में लिखी गई किताब जामिया अल तवारीख को इस दौर की ईरानी तारीख पर सनद तस्लीम किया जाता है, मगर वो भी हसन बिन सबा और किलातुल मौत का तफसीली जिक्र करने के बावजूद वहाँ किसी जन्नत के वजूद से वाकिफ नहीं है। खैर ये तो जन्नत की बात हो गई, खुदा जाने के वो थी या नहीं थी। लेकिन ये भी मशहूर है कि अंग्रेजी का लफ्ज असासिन यानी अहम शख्सियत का कातिल भी हसन बिन सबा ही के दौर की पैदावार है। कहा जाता है कि इस फिरके से तल्लुक रखने वालों को हशीश की निस्बत से हशाशी कहा जाता था जो मगरब में पहुंचकर असैसन बन गया। ये रवायत महज एक मफरूजा है। तरीक की किसी हम असर किताब में इस बात की शफायत नहीं मिलती कि हसन बिन सबा या उसके पैरोकार किसी किस्म की नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल करते भी थे या नहीं करते थे। मारूफ तारीखदान बिनार्ड लॉर्ड्स के मुताबिक इस दौर के इस्माइलियों के लिए लफ्ज हशाशिया या हशीश पीने वाले की इस्तिलाह दरअसल इसलिए इस्तेमाल होती थी कि दूसरों को उनके ख्यालात बहके बहके लगते थे, ना कि खुद हशीश पीने के बायस। स्पेन में इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर अमीलियो गोंजालस का कहना है कि हशाशिन ने नजारियों को शिद्दत पसंद बनाया। एक समाजी रवैया था जिसमें मजहब को जवाज के तौर पर पेश किया गया। हसन बिन सबा के नजरियात कुछ भी हों लेकिन था वो इंसाफ पसंद। तरीक में उसकी इंसाफ पसंदी की कई हवाले दिए जाते हैं, हत्ता कि उसने अपने दोनों बेटों के मुकदमे में भी इंसाफ से रूगर्दानी नहीं की। एक को शराब और जिना, दूसरे को कत्ल के जुर्म में मौत की सजा सुना दी। 12 जून 1124 को जब हसन बिन सबा का इंतकाल हुआ उसकी नूरीना औलाद जिंदा नहीं बची थी, इसलिए उसने अपने एक दाई बुजुर्ग उम्मीदवार को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया, जिसमें 1256 में तब तक किलातुल मौत पर हुकूमत की जब तक के मंगोलों ने इस्माइली नजारियों का कला तमाम नहीं कर दिया था। तरीक बताती है कि हसन बिन सबा ने अपने एक अजीज फदाई को किलातुल मौत से सिर्फ इसलिए निकलवा दिया था कि उसने बांसुरी बजाई थी, जबकि मंगोल तरीकदार जवीनी अपनी किताब तारीख जहां कुशा गवाही देता है कि हसन बिन सबा ने
अपनी बीवी और बेटी को अल-मौत से दूर गिरदगोह के कलम में भिजवा दिया, जहां वो अपने हाथों से सभी काम करके रोजी रोटी का बंदोबस्त करती रही। उसके रहनुमा को इर्तिकाज का ये आलम था कि वो अल-मौत में आ जाने के बाद 35 बरस तक किले से बाहर नहीं गया, बल्कि अपने घर से भी सिर्फ 2 बार बाहर निकला। रशीदुद्दीन हमदानी जामियातुल तवारीख में लिखते हैं कि वो अपनी मौत तक अपने घर ही में रहा, जहां वो अपना वक्त मुताले, दावत, तहरीर करने और अपनी अमलदारी का निजामो नसब चलाने में गुजारता रहा। हसन बिन सबा की जिंदगी इस लिहाज से बेहद दिलचस्प है कि उस पर तरह तरह के अफसानों की दबीज धुंध छाई हुई है, जिसमें उनकी असल शख्सियत शायद कहीं गुम होकर रह गई है। फिर तब ज़रीफी तो ये है कि जमाने में उसका असल नाम भी बदल डाला। उसका असल नाम हसन अल सबा था, लेकिन तारीख उसे हसन बिन सबा के नाम से याद करती है। हालांकि उसके वालिद का नाम सबा नहीं बल्कि अली था। हसन बिन सबा की क़यादत में इस्माइली नजारियों ने एक रियासत बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। गोश की तहरीक को इस दौर की मकबूल तहरीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसे इंतहाई फिक्री तस्लीम किया जाता था, जिसके मजहबी रुझानात में बुनियाद परस्ती को जन्म दिया। हकीकत कुछ भी हो, लेकिन हसन बिन सबा का किरदार आज भी उतना ही पुरसरार है जितना के माजी में था। उसके किरदार पर नावल तसनीफ हुए, कहानियां लिखी गईं, शायरों ने अपने कलाम में उसकी जन्नत के हवाले दिए। ये थी कहानी हसन बिन सबा की, एक पुरसरार शख्सियत जिसने अपने दौर में इर्द गिर्द के तमाम हुक्मरानों, बड़े बड़े ताकतवर लोगों को हिलाकर रख दिया। उसकी जन्नत हकीकत थी कि अफसाना। उसके फदाइन उनके नजरिए पर जान देते थे कि हशीश के नशे में ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।